So good morning students. Today we are going to discuss our video card, and the last class we discussed about the sound card. So what is the video card? So video card is the one card that is present in our computer screen. ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में होता है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ द इमेज इनहेंस्ड होती है. इनहेंस्ड मीन्स इट शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी. ओके, फॉर दैट पर्पस वी यूज द video card, and video card is also known as the graphics card. You know that when we have to purchase the laptop, तो बोलते हैं इसका ग्राफिक्स कितना अच्छा है. तो ग्राफिक्स का ग्राफिक कार्ड का मीन्स क्या है, उसका जो वीडियो कार्ड है वो कितना अच्छा है, देखते हैं वो कितनी इमेजेस को क्लियर में शो करता है. ओके, सो दैट इज अवर दिस वन वीडियो कार्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर CPU. CPU is Central Processing Unit. It is a full form of and Central Processing Unit, and it is also called the brain of the computer. Why it is called the brain? Because all the instructions that are coming from the hardware, are coming from any of the device, or the input or the output, or the processing, or to manage the management of the storage. All these are done with the help of this one, CPU. It is just like our brain, है ना. जैसे हमारे ब्रेन में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ हमारा ब्रेन करते हैं. द सेम वे CPU इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क, दैट इट इज टेकिंग द इनपुट, दैट इट इज कंट्रोलिंग द इनपुट, कंट्रोलिंग द आउटपुट, इट इज प्रोसेसिंग, मैनेज द स्टोरेज. ऑल दीज थिंग्स आर डन इन by the help of this CPU. And CPU is the main thing that we call the processor. Okay, CPU को हम बोलते हैं इसका एक प्रोसेसर. जैसे कभी बोलते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर, तो स्पीड ऑफ द प्रोसेसर मीन्स कि वो कितने इंस्ट्रक्शंस आपके पर सेकंड में एग्जीक्यूट का कर सकता है. दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. ओके, दैट मीन्स सपोज दैट इट इज टेकिंग, हम लोग बोलते हैं ये प्रोसेसर, ठीक है, कोई भी प्रोसेसर का नाम लेते हैं, तो उसका मीन्स होता है कि ये इतनी इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में हमें प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड the speed of that, on which that speed of the processor depends. Now it depends on it has the three components, that is the memory unit, arithmetic and logic unit, and control unit. So what is the memory unit? Memory unit is the storage of your computer. That means first we will discuss about the memory unit. So memory unit consists of storage. What does it do? It stores our data and instruction that are entered. So what is data and instructions? That is, suppose you have to plus, you are having the data A and B, and you have to do the addition of A and B. So A and B are the data, plus is the instructions. So all the three things, that is that both data and instructions should be stored in our memory unit by CPU. Okay, the next part is about arithmetic and logic unit, ALU. That means all the logical work, addition, subtraction, multiplication, division, or any other thing, all these done are with the help of the ALU, that is the arithmetic and logic unit. ठीक है, so arithmetic and logic unit, what does it do? All the instructions that are coming, the calculation work, the arithmetic work, that is the addition, subtraction, multiplication, division, all these are held with the help of the ALU. The next topic is our control unit. So what is the control unit? It controls the operation of every component of the computer. This unit transfers the data and among the other unit of computers. Okay, that is. Suppose we are here, last part is the control unit, CU. This we will discuss with one example. Suppose one example we will discuss. Suppose we have to print one data. Suppose कहीं हमें print लेना है. So of MS Word, of one of the page of document of MS Word. So हमने MS Word पे गए, वहाँ पे हमने print किया, option क्लिक किया print. हाँ, that print हमने जो क्लिक किया है वो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रिंट जो इंस्ट्रक्शन है
वो हमारे पास प्रिंटर के पास कैसे जा रहा है, उसे कौन कंट्रोल करके लेके जा रहा है, उसे कौन लेकर जा रहा है. For that purpose, we will use the control unit. That means all the hardware and the software, all the instructions that is going from one component to another component, that is all it is controlled by our CU. That is the control unit. So this is our full of our this one CPU. So CPU consists of the three parts. That is the ALU, memory unit, and control unit CU. Okay. Next is our RAM. Next topic is our RAM. So what is the RAM? Random access memory, as we know the full form of RAM. Random access memory. अभी लोगों ने पढ़ी होगी random access memory क्या क्या होती है. और यू आर हैविंग द स्मार्टफोन्स ना, और स्मार्टफोन्स में भी आपके पास रैम होती है. मेरे पास 4 GB रैम है, मेरे पास 8 GB रैम है. ये सब रैम होती क्या है? रैम आपकी एक टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शंस, डेटा वो आपका स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, और जैसे प्रोसेसिंग खत्म होती है वो स्पेस हमारी फ्री हो जाती है. दिस इज कॉल्ड अवर रैम. बट अवर डेफिनेशन इज RAM is a type of memory that is available for the operating system program and process to use when the computer is running. It can be accessed randomly at any time. Whatever the information we enter in the computer goes to the RAM and remains there until the machine is working. Okay, so random access memory is used by our operating system. ठीक है, it is used by our ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स अगर हमारे पास रैम होती है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने में इजी हो जाता है, बिकॉज इट हैव द लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क अबाउट. ठीक है, उसको वो बार बार प्रोसेस करेगा अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके लिए इजी हो जाता है. क्योंकि जब मेमोरी ज़्यादा होगी, जब स्पेस ज़्यादा होगी, तो फिर आपका प्रोसेसिंग भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी ना. ओके, नाउ इट कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम. यस, your the random access memory, it can be accessed any time randomly. That means it's a no requirement of the time that the particular instruction will run according to our RAM. नहीं, वो आपका जब भी आपकी नीड होगी वो आपका यूज हो जाएगा. क्लियर? And this is the next part is very important. That is, it is called the volatile memory. And why it is called the volatile memory? It is called the volatile memory. It is called the volatile memory because इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. ये हमारे पास परमानेंट नहीं है, ये हमारे पास टेम्पररी है. टेम्पररी मीन्स कि अभी आपका सिस्टम ऑन है, अभी आपका कंप्यूटर ऑन है, आपके पास सारी प्रोसेसिंग होगी, चलती रहेगी, सारा वर्क होता रहेगा, रैम के थ्रू मेमोरी चलती रहेगी. बट जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हुआ, इट इरेज ऑल द डेटा. इट इरेज मीन्स ये आपके जितना भी डेटा वो सबको लीव कर देगा, छोड़ देगा, बस खत्म. ठीक है, तो उसका काम सिर्फ तब तक होता है रैम का जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है. और जैसे आपका सिस्टम ऑफ हुआ उसके बाद उसके पास कुछ नहीं पता उसे कितना डेटा है, कितना उसने प्रोसेस किया है, क्या है, नथिंग. इट इज रेस्पॉन्सिबल. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवर वॉलेटाइल मेमोरी. क्लियर? बिकॉज यहाँ पे हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ रैम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, दैट इज द स्टैटिक एंड द डायनेमिक. ठीक है, रैम हमारे दो टाइप से होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. अब यहाँ पे हमारे एक एग्जांपल दिया, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है अबाउट द ब्लैक बोर्ड. सो रैम इज लाइक अ ब्लैक बोर्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ओपरेटेड विद द न्यू डेटा. जैसे ये बोर्ड है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट द CPU बिफोर आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट द दिस वन वीडियो कार्ड. तो वीडियो कार्ड के ऊपर हमारा क्या आया? CPU. पूरा हमने CPU पूरा डिस्कस किया. उसके ऊपर हमने क्या क्या डिस्कस किया? रैम. दैट मीन्स योर डेटा इज ओवर राइटिंग. सबसे पहले वीडियो का कार्ड था, फिर आपका दिस वन CPU वाला पार्ट आया, फिर आपका रैम आया. तो ये क्या कर रहा है? आपका डेटा ओवर राइट हो रहा है ना. दैट मीन्स आपका डेटा को स्टोर नहीं कर रहा है, आपके डेटा को स्टोर करके नहीं रख रहा है कि चलो यहाँ पर हमने ये रख लिया, यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट रख लिया. ऐसा कुछ भी नहीं है ना. सिर्फ आपका डेटा क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए वर्कआउट हो रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, ये डेटा हमारा ओवरराइट कर दिया हमने क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया. इन द सेम वे वी विल यूज अवर रैम. नाउ नेक्स्ट इज अवर रोम. रोम इज द रीड ओनली मेमोरी. इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच वी कैन रीड इन्फॉर्मेशन, कैन नॉट राइट ऑन इट. अब जो आपका रोम है वो क्या है आपका? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं लिखा होगा,
चलिए इसको देखते हैं। दिस इज द रीड ओनली मेमोरी। देखिए रीड ओनली मेमोरी का मीन्स क्या होता है कि आपने कोई भी सिर्फ आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो एक बार, जो भी उसमें लिखा हुआ आया है बस आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसे खुद से नहीं लिख सकते हो। दैट मीन जो भी एक बार तो वो राइट हुआ होगा ना कहीं एक बार तो वो राइट हुआ होगा, तो एक बार जब वो राइट हुआ बस वही राइट हो चुका है, उसके बाद हम उसे बार बार ओवर राइट नहीं कर सकते क्योंकि हम रैम में कर रहे थे। नाउ व्हाट वी विल यूज, वी जस्ट यूज अवर रोम, बस हम अपने रोम को यूज कर सकते हैं कि हाँ हम उसको सिर्फ रीडिंग पार्ट के लिए। रीडिंग पार्ट का मतलब ये नहीं कि हम उसमें कुछ ABCD पढ़ना है। रीडिंग पार्ट का मीन्स है कि हमें उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, हमारा सिस्टम से उसको रीड कर सकता है, बट इट कैन नॉट बी रिटेन। एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आई हैव यूज्ड द वर्ड हियर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दैट मींस इसमें जो भी आपकी मेमोरी है वो आपकी परमानेंट है। अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है एनी मीन्स एकदम से हो जाता है बंद, और या फिर आप खुद बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका डेटा जो भी होगा वो आपका सेव रहेगा, वो आपका नहीं जाएगा वहाँ से। ठीक है, दैट मीन इट स्टोर योर डेटा परमानेंटली। ठीक है, नाउ रोम हमारा एक तरीके से इसका एग्जांपल है, तो रोम हमारा जस्ट लाइक जो हम एक CD बर्न करते हैं। सपोज वी आर हैविंग द सॉन्ग्स, हमारे पास 25 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, और हमें इसको एक CD जानते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके ऊपर हमें मतलब उसमें हमें स्टोर करना है हमारे। ठीक है, अब हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। बर्न का मतलब है उसको हम परमानेंटली उसके ऊपर रख देते हैं। जब हम उस CD पे उसको बर्न करेंगे उसका मीन्स क्या हो गया कि वो जो आपके 25 सॉन्ग्स हैं वो इस CD के ऊपर आ चुके, CD के अंदर आ चुके हैं, एंड नाउ दे कैन नॉट बी ओवर रिटेन। अगर वो बर्न हमने किए हैं तो वो आपके क्या करेंगे, ओवर रिटेन नहीं होंगे। दैट में हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते इन एनी केस। ठीक है, अब हम कर तो सकते हैं ओवरराइट, लेकिन रोम में नहीं कर सकते। फिर हम उसके लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ आती है, दैट इज द PROM, EPROM, इलेक्ट्रिकल मतलब डबल EPROM। तो PROM होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारा पास इरेजेबल भी होता है, दैट मीन हम उसको लेज़र बीम के थ्रू हम अपने डेटा को पूरा मिटा सकते हैं, उसको फिर से यूज में ले सकते हैं। बट ये रैम की तरह नहीं होता कि हम उसको फ्रीक्वेंटली आराम से यूज़ कर रहे हैं ओवरराइट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अवर रोम। And in the next chapter, in the next video, we will discuss about the disk drive, SMPS modem, or the another things. So for this, for today, thank you so much and see the video. हाँ, ये सारे वीडियो बेटा आप ही के लिए बन रहे हैं अभी। ठीक है, उन वीडियोस को बेटा देखिए, इनसे नोट्स अपने प्रिपेयर करिए। आपके पास जो कोर्स लिया आपने, सिलेबस लीजिए, सिलेबस में जो नोटबुक है उसमें आप अपने दोनों साइड को यूज़ करिए, जो आपकी कॉपीज़ होंगी, और उसमें एक साइड अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है वहाँ से आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आप नोट डाउन करते जाइए अपना। ओके, सो फॉर टुडे दैट मच, थैंक यू, टेक केयर।